Welcome back. As you can see, we are developing a Python MySQL project for library management system, and this is part number 3. In the previous two sessions, we have already seen the roadmap of the project, basic requirements, database architecture, how we created database, menu designing, and also developed almost all the basic CRUD, that is create, read, update, delete, and other functionalities for book member management. And we have also developed all the reports like book details, member details, return details, issue detail, etc. So if you missed those videos, then you can click on the given I button and get the links for them. Namaste students, this is Sanjay and welcome back to my YouTube channel Technic Now. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel if you are new or visiting first time in my channel, and if you really like this video, then please don't forget to like and share it as well. Now, in this video, we are going to discuss the most important part of this library management system project, that is issuing book, or you can say book issue and book returns. And at the same time, we will also implement one chart to see the best rating book using data visualization concept. So let's move directly to my Python shell and start working on book issue. So this is our program, and you can see that we have already created many functions for implementing different functionalities, like you can see here, adding book details, deleting book details, searching book details. Similarly, for members also we have created various functions. So now we are going to create a function for issuing book. As you can see here, this is the option, but what I am thinking is that it is very important to understand before creating the function for this book issue that what kind of operations we are going to perform, और उसका जो बेसिक लॉजिक होगा वो कैसा होगा वो हमारे लिए समझना बहुत ही जरूरी है. तो सबसे पहले मैं इसे मैनुअली आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बुक इशू के दौरान हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं और किस तरह से हम उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, सो दैट जब मैं इसका फंक्शन डेवलप करूंगा तो आपको काफ़ी आसानी होगी इसके फंक्शन के कोड को समझने में. नाउ यू कैन सी कि जब हम बुक इशू की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, इसमें हम एक वर्क करेंगे. इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने देखा है कि जब हम कोई भी बुक आईडी या मेंबर आईडी डालते थे तो उसके लिए हम मैनुअली उसमें इनपुट करते थे 1 या 2. बट नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट कि जब मैं बुक इशू करूंगा या इन फ्यूचर बुक रिटर्न करूंगा तो ये जो मेरी बुक इशू आईडी है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होनी चाहिए. तो एक तो मैं पहला कोड यहाँ पे करूंगा ऑटो जनरेटेड इशू आईडी के लिए. तो सबसे पहले तो इसका कोड मुझे लिखना होगा. सेकंड, इसके बाद इसी इशू के अंदर जो अगला वर्क हम करने जाएंगे वो ये होगा कि अगर मैं जिस बुक को इशू करने जा रहा हूं वो किस मेंबर को इशू कर रहा हूं, उस मेंबर आईडी को भी मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं. So definitely I'll check whether member ID is correct or not. So इस member ID की चेकिंग हम करेंगे, and at the same time अगर मेरा मेंबर सही है तो मैं चेक करूंगा मेरी बुक आईडी को. तो इसके लिए मैं अगला कोड जो इसी इशू के अंदर करूंगा that will be definitely for checking book ID whether it is correct or not. एंड देन फाइनली मैं यहाँ पे इशू करूंगा कितनी बुक्स मैं उसे इशू कर. अब जब हम बात करेंगे कॉपीज को एंटर करने की, नंबर ऑफ कॉपीज जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होगा कि क्या जो मैं बुक उसे इशू करने जा रहा हूँ, आई मीन मेंबर को इशू करने जा रहा हूँ, उसकी रिमेनिंग कॉपी कहीं जीरो तो नहीं है. अगर मेरे पास किसी बुक की रिमेनिंग कॉपी जीरो है तो ऑब्वियसली जब मैं उस बुक को इशू करूंगा तो मेरे पास एक मैसेज आना चाहिए बुक इज नॉट अवेलेबल. सो इसका मतलब मैं पहले चेक करूंगा वेदर माई नंबर ऑफ रिमेनिंग कॉपीज आर ग्रेटर देन 0 और नॉट. तो अगर ये सही होगा देन मेरा बुक इशू होगा, और अगर नहीं तो इसका मतलब नॉट अवेलेबल का मैसेज आना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट, से फॉर एग्जाम्पल एज आई सेड कि यहाँ पे रिमेनिंग कॉपीज 10 है. अगर मैं कोई बुक इशू करता हूं से 1 नंबर की आईडी और मैं यहाँ पे डालता हूं 1 बुक मैंने इशू की, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये 10 जो है वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा 9. इसका मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑटो अपडेशन की, जो कहाँ होगा हमारे बुक टेबल में होगा, और कौन सी फील्ड में होगा, ऑब्वियसली मेरी रिमेनिंग कॉपीज में. और यही बात मेरे रिटर्न के केस में उल्टी हो जाएगी. वहां पर जब मैं कोई बुक रिटर्न करूंगा तो जो रिमेनिंग कॉपीज हैं वो बढ़कर कितनी हो जाएंगी आपके 10. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये इतने सारे ऑपरेशंस हम इस इशू टेबल में परफॉर्म करने जा रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जनरेट हम कैसे करेंगे ऑटो आई मीन इशू आईडी को ऑटोमेटिकली.
तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि मेरा ये जो इशू टेबल है क्या इसमें कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब उसमें जो सबसे मैक्सिमम इशू आईडी होगी, सपोज 1 2 3 4 या जो भी हो, सो जो सबसे लार्जेस्ट आईडी होगी वो मैं सबसे पहले फेच करूंगा और आफ्टर फेचिंग इट इसकी वैल्यू को मैं बाई 1 इंक्रीमेंट कर दूंगा। एंड एट द सेम टाइम अगर इशू आईडी में कोई भी रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरी इशू आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं चलता हूं पाइथन शेल पे और इस कोड को बनाने की कोशिश करता हूं, देन वन बाय वन हम अदर फीचर्स को देखते हैं। तो नाउ मैं पहले इस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो मेरा ये ऑप्शन नंबर 1 है चॉइस 3 में, दैट इज इशू बुक। तो इस ऑप्शन 1 में मैं अपने फंक्शन का नाम दे देता हूं बुक इशू और इसको मैंने यहाँ कॉल कर लिया है। एंड देन आफ्टर व्हाट आई डू, मैं इसे डिफाइन करता हूँ यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दिस डिफाइन, द नेम ऑफ माई फंक्शन इज बुक इशू, देन पुट दिस कोलन। सो आफ्टर दिस व्हाट विल आई डू, मैं सबसे पहले क्वेरी स्ट्रिंग रेडी करूंगा जहां पर मैं अपने इशू टेबल में चेक करूंगा कि अगर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो जो इशू आईडी है उसमें सबसे लार्जेस्ट इशू आईडी कौन सी है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट देन मैक्स फंक्शन एंड इसके अंदर में मैं जाके लिख देता हूँ इशू आईडी, देन ऑब्वियसली माय टेबल नेम दैट इज इशू एंड इसके बाद में मैं यहाँ सेमीकोलन डाल के इन्वर्टेड कॉमा से इसे क्लोज करूंगा। एंड वी ऑल नो दैट कि इसके बाद में हम कॉल करेंगे अपने रिकॉर्ड सेट दैट इज कर्सर ऑब्जेक्ट को और इसके एग्जीक्यूट मेथड के थ्रू मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दूंगा। अब होगा क्या कि ये जो कर्सर है ये मेरे MySQL में इस इशू टेबल के डेटा इशू आईडी का जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसे यहाँ पे निकाल के दे देगा। नाउ ये कर्सर ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या करता है, ये इस इशू टेबल के इस इशू आईडी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे फेच करेगा और अपने पास रख लेगा। लेकिन अगर मुझे उसे यूज करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल लेता हूँ r और उसमें मैं इस कर्सर के डेटा को जो MySQL से जो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है जो कर्सर में अवेलेबल है उसको मैं यहाँ पर इसके एक मेथड fetch1 के थ्रू क्या करूंगा, r में ले लूंगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके से करना चाहूंगा वो ये कि ये जो fetch1 मेथड होता है ये एक्चुअली जो वैल्यू रिटर्न करता है वो कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं होती, वो बेसिकली सेट ऑफ वैल्यूज होती है जो टपल्स के फॉर्म में होती है। इन द सेंस जैसे सपोज दैट अगर मैं बुक टेबल के इस डेटा को एक्सेस करूं यूजिंग दिस बुक आईडी तो जो fetch1 मेथड है वो इस पूरे सिंगल रिकॉर्ड को रिटर्न करेगा। ना ये जो सिंगल रिकॉर्ड है इसमें बुक 1 में 1 भी है, C++ भी है एंड सो ऑन है। तो होता क्या है, ये इसे एक टपल का फॉर्म रेडी करता है fetch1 और देन अगर आप उसको लिखते हो r इक्वल टू कर्सर डॉट fetch1 जैसे मैंने आपको अभी बताया तो होगा क्या कि ये टपल के फॉर्म में r में सारी वैल्यूज आएंगी, राइट। और चूंकि मैं यहाँ पे अभी मैक्स फंक्शन यूज कर रहा था अपने इशू में तो जो इसका आंसर आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, सिर्फ 1 आपको मिलेगा और इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये होगा मेरा क्या, एक टपल। तो अगर मुझे सिर्फ 1 को एक्सेस करना है तो मैं इसे r0 को यूज करते हुए इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर आप इसको fetch1 और यहाँ पे 0 इंडेक्स कर देंगे तो भी मेरे इस r में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। ये 0 मैं तब बोल रहा हूँ अगर कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसकी यहाँ पे वैल्यू 2 4 6 कुछ भी हो सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैंने यहाँ पर ये r इक्वल टू कर्सर डॉट fetch1 ले लिया है, बट मुझे चूंकि सिंगल वैल्यू चाहिए, टपल को यूज नहीं करना है क्योंकि मैं इस वैल्यू को या तो इंक्रीमेंट करूंगा या डिक्रीमेंट करूंगा, जैसा भी है। एक्चुअली डिक्रीमेंट का तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि इशू आईडी हमेशा बढ़ती जाएगी तो इंक्रीमेंट ही होगा ना। ये मेरे पास r आ चुका है। अब मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि इफ माई r इज एग्जिस्टिंग, अगर ये r एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरा यहाँ पे एक मैसेज मैं चेक करता हूँ। पहले हम चेक कर लेते हैं ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जिस्टिंग और एग्जिस्ट, एंड अगर नहीं है तो मैं ले लूंगा एल्स यू कैन से प्रिंट नॉट एग्जिस्ट। एंड नाउ मैं इसे एक काम करता हूँ, एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। सो दिस इज माई मेन मेन्यू, यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 लिया, नाउ ऑप्शन नंबर 1। So now it is saying that not exist because मेरे MySQL में अभी तक हमने इशू टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं डाला है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये कंफर्म हो गया मेरा ये वर्क सही हो रहा है। अब बात आ रही है इशू आईडी को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करने की।
तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि मेरा जो इशू आईडी एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, इक्वल टू मैं बोलता हूँ कि जो ये वैल्यू मेरे R में आई है इसको बाई 1 इंक्रीमेंट कर दो, तो आई कैन सिंपली राइट R+1। एंड अगर ये नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मेरा जो इशू आईडी होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्टार्ट करेगा 1 से। अब देखिए ये सही हो गया। अब अगर आप इसे रन करेंगे तो इशू आईडी आपको क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा। ये तो बात हो गई मेरे ऑटोमेटिक जनरेशन की। नाउ सेकंड, इसके बाद में जो हम वर्क करने जा रहे हैं वो ये कि हमारा इशू आईडी का तो वर्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद में सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल x लेंगे जिसमें हम मेंबर इनपुट करते हैं, मेंबर आईडी ले लेते हैं, किस मेंबर को हम इशू करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करता हूँ। ऑब्वियसली उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, इनपुट स्टेटमेंट। एंड नाउ जैसा हम पहले भी करते हैं, अब हम इसे भी चेक करेंगे कि जो मेंबर आईडी मैंने डाली है वो सही डाली कि नहीं डाली है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेरी स्ट्रिंग रेडी करता हूँ, आई टेक इट टू Q1, और इसमें मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट। नाउ आफ्टर दिस मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा इस क्वेरी को यूजिंग दिस cursor.execute मेथड। एंड देन ऑब्वियसली मैं फिर से इस R में इस कर्सर के fetch1 से इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। नाउ आफ्टर दैट अब मैं चेक करता हूं इफ R इज एग्जिस्टिंग, इसका मतलब मेरा मेंबर आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं यहां पे ले लेता हूं प्रिंट। सो दिस इज ऑल्सो डन। सो चलिए इसे भी एक बार रन करके कंफर्म कर लेते हैं। So I am selecting option number 3, then option number 1. So enter member ID. So now it is saying that it is existing. If I select it again, enter member ID, say this time I take 9. So now it is saying that not existing. So it is working well now. So अब मैं क्या करता हूँ, आप चाहें तो MySQL में select star from member करके भी इसे चेकआउट कर लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। बट फ्रॉम माई साइड इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो नाउ अगर मेरा मेंबर आईडी एग्जिस्ट कर रहा है तो दिस टाइम ऑब्वियसली मैं चेक करूंगा बुक आईडी, कौन सी बुक आईडी मुझे इशू करनी है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे इनपुट करूंगा मेरी बुक आईडी को। सो आई कैन राइट इट टू इनपुट। सबसे पहले मैंने बोला एंटर नाउ बुक आईडी। अब जो भी बुक आईडी मैं यहाँ पे ले लूंगा उसके बाद में मैं ये चेक करूंगा कि ये बुक आईडी जो मैंने ली है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सो आई कैन सिंपली टेक इट टू से क्वेरी नंबर 2। इसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रेडी करता हूँ सेलेक्ट बुक आईडी। एंड यहाँ पर मैं एक चीज और कर रहा हूँ इंक्लूड, जो होगा मेरा रिमेनिंग कॉपीज। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमने जैसा आपसे डिस्कस किया कि अगर बुक इशू हो गई तो या बुक जब हम इशू करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी रिमेनिंग कॉपीज बुक टेबल में अपडेट होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे उस रिमेनिंग कॉपीज की वैल्यूज को पहले से ही एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इस क्वेरी के थ्रू। दैट्स वाई मैं ये इस तरह से लिख रहा हूँ। एंड फ्रॉम बुक देन वेयर आई कैन से, यहाँ पर ये हो जाएगा बुक आईडी इक्वल टू ऑब्वियसली जो वैल्यू हमने y में पास की है, देन सेमी कॉलन, देन इन्वर्टेड कॉमा, देन ऑब्वियसली डॉट फॉर्मेट, जो वैल्यू हम पास करेंगे वो होगी हमारे y की। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे Q2 की जो वैल्यू है, जो क्वेरी है, उसे एग्जीक्यूट करूंगा यूजिंग दिस कर्सर मेथड। एंड देन अगेन आई विल चेक इफ R इज एग्जिस्टिंग, मतलब ये बुक एग्जिस्ट कर रही है क्या। सो इफ इट इज ट्रू मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है बुक आईडी, तो अब मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कोड लिखूंगा। तो जो कोड मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा, ऑब्वियसली देखिए मैंने बुक आईडी तो यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। बुक आईडी के बाद मैं ये चेक करता हूँ कि क्या उसकी रिमेनिंग कॉपीज कहीं जीरो तो नहीं है। अगर जीरो होगी तो फिर तो मैं बुक इशू ही नहीं कर सकता। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये तो मेरा एक टपल हो गया। तो टपल का जो फर्स्ट है वो तो बुक आईडी है और सेकेंड इंडेक्स जो है वो रिमेनिंग कॉपीज है। सो मैं यहाँ पे फिर से एक इफ स्टेटमेंट लगाऊंगा और दिस टाइम मैं लूंगा R1 जो कि मेरी रिमेनिंग कॉपीज होगी, और मैं चेक करूंगा कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0 ओनली देन मैं अपने बुक को इशू करूंगा। तो अब मेरे पास इशू आईडी आ गई, मेंबर आईडी हो गया, बुक आईडी हो गया, और ये चेक हो गया कि ये 0 से ज्यादा है। अगर ये सही है तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक इशू डेट लूंगा सबसे पहले तो, और उसके अंदर मैं मैसेज फ्लैश कर दूंगा कि आप इनपुट कर दीजिए इशू डेट। तो मैं इसके लिए कोड लिख देता हूँ यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट मैं कॉपीज कितनी इशू करूंगा वो मैसेज फ्लैश कर देता हूं। एंड देन इसके बाद में जब ये दोनों रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूं रिमेनिंग कॉपीज कि अगर ये इशू होगा तो जो रिमेनिंग कॉपीज होंगी वो मेरे बुक टेबल में अपडेट होंगी। सो मैं उसे ऑब्वियसली R1 से माइनस करूंगा, किसको, कॉपीज को। तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया यहाँ पे रिमेनिंग कॉपीज के लिए। नाउ मैं यहाँ पर एक क्वेरी स्ट्रिंग रेडी करूंगा से क्विक Q3,
जहां पर कि मैं अब इसे इंसर्ट करने के लिए क्वेरी लिखूंगा। सो मैं इसे लिख देता हूं इंसर्ट इनटू माय टेबल नेम इज ऑब्वियसली इशू, और इशू टेबल में ऑब्वियसली जो वैल्यूज होंगी, सबसे पहले तो मेरी वैल्यूज के लिए जो प्लेस होल्डर होगा वो इशू आईडी, फिर डेट जो होगा वो मेरा सिंगल कोटेशन मार्क में होगा, एंड इसके बाद में मेंबर आईडी ऑब्वियसली इंटीजर, बुक आईडी, देन कॉपीज, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन फॉर्मेट के अंदर मैं जिन वेरिएबल्स में सारी वैल्यूज मैंने पास की हैं वो ले लेता हूं। तो इशू आईडी तो मेरा इशू आईडी वेरिएबल में है, देन मैंने मेंबर आईडी x में ली हुई है, देन मैंने बुक आईडी y में ली हुई है, एंड इसमें इसके पहले यहाँ पे इशू डेट आएगी। सो मैंने यहाँ पे इशू डेट ले लिया, देन x हो गया, y हो गया, एंड इसके बाद में लास्ट में मेरी कॉपीज। सो ये हो गया मेरा फॉर्मेट मेथड और ये क्वेरी रेडी हो गई। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ एग्जीक्यूट होने के बाद में एट द सेम टाइम एक और क्वेरी मैं कॉल करूंगा, मींस स्ट्रिंग रेडी करूंगा, जहां पे मैं अपडेट करूंगा क्या, बुक टेबल को, और सेट कर दूंगा मेरी रिमेनिंग कॉपीज फील्ड को इक्वल टू जो हमने अभी रिमेनिंग कॉपीज अपडेट की, और वेयर ऑब्वियसली माय बुक आईडी इज दिस y। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेयर बुक आईडी इक्वल टू अगेन दिस प्लेस होल्डर, देन सेमीकोलन, देन इन्वर्टेड कॉमा, देन अगेन माय फॉर्मेट, एंड इस फॉर्मेट के अंदर में मैं जाके सबसे पहले रिमेनिंग कॉपीज हैं। सो इसके लिए जो वेरिएबल मैंने लिया है दैट इज रिमेनिंग कॉपीज। You can see here this is my remaining copies and the book ID is in y, so मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, एंड ये मेरा रेडी हो गया। अब इसे भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्वेरी नंबर 4 को कॉल कर लूँगा, एंड इसके बाद में मैं इसे कंप्लीट करने के लिए con.commit को कॉल करूँगा, जिससे ये MySQL में एक्चुअल टेबल में डेटा अपडेट हो जाएगा, एंड देन आई कैन सिंपली पुट अ मैसेज दैट बुक इशूड, राइट। एंड ये हो गया मेरा वर्क कंप्लीट। एंड अगर इन केस ये वैल्यू 0 होगी तो मैं यहाँ पे मैसेज फ्लैश कर दूंगा प्रिंट से, राइट। सो ये हो गया मेरा वर्क कंप्लीट। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे वापस आऊंगा कि इफ का ये एल्स पार्ट लूंगा, जहां पर कि मैं ये मैसेज फ्लैश करूंगा कि प्रिंट बुक आईडी जो है वो आपने सही नहीं डाली। तो ये हो गया मेरा रॉन्ग बुक आईडी, एंड इसके बाद में इसे मैं क्लोज करूंगा, एंड देन ये जो एल्स पार्ट में मैंने मेंबर आईडी के लिए लिखा था तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रॉन्ग मेंबर आईडी, एंड दैट्स इट। तो आई थिंक मेरा ये इशू फंक्शन रेडी है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद इसे रन करके हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं पहले बुक डिटेल्स चेक करता हूँ। सो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 4 नंबर बुक, सो रॉन्ग बुक आईडी, इसका मतलब मैं पहले बुक एंटर कर लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं बैक मेन्यू में चलता हूँ और रिपोर्ट में चल के चेक करता हूँ कि कोई बुक एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही। तो नाउ यू सी 2 नंबर की बुक मेरे पास है। मेंबर डिटेल चेक करते हैं, 2 मेंबर्स भी हैं अवेलेबल। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेन मेन्यू में वापस, और यहाँ से मैं ट्रांजैक्शन में चलता हूँ, और अब मैं इशू बुक में चलता हूँ और मेंबर आईडी में डालता हूँ 1, बुक आईडी में डालता हूँ 2। तो इसने दिखा दिया एरर। अब ये रिमेनिंग कॉपीज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अननोन कॉलम बोल रहा है, इसे चेक करते हैं। एक्चुअली मेरा जो टेबल है MySQL में, वहां पर ये रिमेनिंग अंडरस्कोर कॉपीज के नाम से है। तो नाउ अब मैं इसे सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। सो नाउ दिस इज माई मेन मेन्यू। सो आई सेलेक्ट दिस ऑप्शन नंबर 3, देन ऑप्शन नंबर 1, enter member ID. So this time I am taking it 1, and book ID is my 2. So now it is saying that issue date, तो मैं ले लेता हूँ 11-24. Now number of copies I am taking it to 1, right? But before that मैं MySQL में चलता हूँ, और यहाँ पे आपको देखेंगे बुक मेरे पास रिमेनिंग कॉपीज 10 है। चलिए देखते हैं ये अपडेट होता है कि नहीं होता है। सो रिमेनिंग कॉपीज मैंने डाला तो यहाँ पर फिर से ये स्पेलिंग की प्रॉब्लम आ गई। चलिए इसे भी ठीक कर लेते हैं पहले। सो ये मैंने करेक्ट कर दिया, एंड ऑल्सो आई करेक्ट दिस रिमेनिंग कॉपीज टू रिमेनिंग अंडरस्कोर कॉपीज। नाउ अब मैं इसे रन करता हूँ। सो दिस इज माई मेन मेन्यू। आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 3, देन ऑप्शन नंबर 1, एंटर मेंबर ID 1, बुक ID 2,
then issue date I take it to 2020, then 11, then 24. Number of copies I am selecting 1. So now you can see my book is issued. And after that what I do, मैं MySQL में चल के सबसे पहले करता हूँ select star from book. So now you can see मेरा book का value update हो चुका है. And at the same time if you take it to select star from issue, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे बुक ID 2 में नंबर ऑफ कॉपीज 1 आ चुकी है. और आप चाहें तो इसे अपने इस मेन्यू से जाके भी देख सकते हैं, लाइक 3. सॉरी, ये मैंने ऑप्शन गलत कर लिया. तो अब ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, जो सबसे लास्ट में हम करेंगे. बट फिलहाल आप चाहें तो मेन मेन्यू में जाके इसे चेक करते हैं, तो मैं लास्ट में इसे एक बार बताऊंगा. बट ओवरऑल मेरा ये कोड सक्सेसफुली अब रेडी हो चुका है. तो सो नाउ सिमिलरली इसी की तरह बिल्कुल मेरा रिटर्न फंक्शन भी वर्क करेगा. बट रिटर्न में सिर्फ हम क्या करेंगे कि हमारा जो नंबर ऑफ कॉपीज रिटर्न होगा, तो सिमिलरली बुक में अब वो नेगेटिव होने की जगह पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब रिमेनिंग कॉपीज बाई रिटर्निंग नंबर ऑफ कॉपीज से बढ़ जाएगा या ऐड हो जाएगा उसमें. सो मैं यहाँ पे अब फंक्शन ले लेता हूँ बुक अंडरस्कोर रिटर्न, एंड देन अब मैं इसे डिफाइन करता हूँ. तो मैं क्या करता हूँ, ये सेम फंक्शन लेता हूँ मेरा बुक इशू, और इसे कॉपी करके इसमें सर्टेन चेंजेस करते हैं. सो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ. तो ये मैंने कॉपी ले ली है. अब मैं इसे नाम दे देता हूँ बुक अंडरस्कोर रिटर्न. एंड चूंकि मुझे रिटर्न में भी ऑटोमेटिक रिटर्न आईडी चाहिए, सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट मैक्स में यहाँ पे ले लेता हूँ रिटर्न आईडी. तो मैं सारी चीज़ों को एक एक करके चेंज कर देता हूँ. नाउ हियर यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मेंबर आईडी के बाद जब हम बुक आईडी इनपुट करेंगे, तो अब हमें रिमेनिंग कॉपीज जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो 0 है कि कितनी है, राइट. बिकॉज यहाँ पर हमें वापस उसे एड ऑन करना है. तो इस जगह पे ये जो मैंने इफ स्टेटमेंट डाला हुआ है ये मैं रिमूव करूंगा. इशू डेट मेरा होगा, नंबर ऑफ कॉपीज होगा, और यहाँ पे मैं इसे 1 कर दूंगा. तो मैं ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इसे मैं रिमूव करता हूँ, और इस तरह से ये एल्स पार्ट को भी मैं यहाँ से रिटर्न में रिमूव कर दूंगा, और इन्हें 1 स्टेप बैक मैं इंडेंटिंग कर देता हूँ फॉर दिस इफ स्टेटमेंट. एंड यहाँ पे इशू डेट इज करेक्ट. नाउ इट शुड बी रिटर्न डेट एक्चुअली. सिमिलरली यहाँ पे बुक आईडी भी सही है. यहाँ पे एंटर रिटर्न आईडी होना चाहिए और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिटर्न होना चाहिए. देन इट शुड बी प्लस होना चाहिए यहाँ पे. R1 प्लस कॉपीज हो गया. देन इंसर्ट इनटू ऑब्वियसली माय रिटर्न्स, एंड देन दिस इज रिटर्न आईडी, देन ऑब्वियसली रिटर्न डेट, सो देन मेंबर आईडी, देन बुक आईडी, देन नंबर ऑफ कॉपीज. सो व्हाट आई डू, इसे मैं कर दूंगा रिटर्न आईडी, जिसको मैंने यहाँ पे इशू आईडी के नाम से लिया हुआ है. तो मैं इसे भी चेंज कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे इसे रिटर्न आईडी कर देता हूँ. एंड इशू डेट शुड बी रिटर्न डेट. इट शुड ऑल्सो बी चेंज्ड. So I think it is almost done now. Let me check its name again. So ये भी ठीक हो गया मेरा. So now it is executed. अपडेट में set remaining copies बिल्कुल अपडेट हो जाएगी, एंड यहाँ पे हम बोल देंगे book return. So अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ book return. That's it. And rest all are same. इसमें मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो अब मेरा ये रिटर्न फंक्शन भी रेडी है. चलिए इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो दिस इज माय मेन मेन्यू. सो आई सेलेक्ट अगेन ऑप्शन नंबर 3, देन आई गो टू ऑप्शन नंबर 2 रिटर्न. सो आई एम टेकिंग दिस मेंबर आईडी, देन द बुक आईडी. This time I take it to 2 again. Return date obviously 2020-11-24. Then number of copies I am taking 1. So here it is saying that there is some error in this particular area. So let me check it, what is the problem exactly. So here it is saying that return date जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, it is already taken into this. So let me check in the return table here. So I take it to describe returns. So here it is date and return date is ठीक है. यहाँ पे return ID भी ठीक है, सब चीज ओके है. यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है. तो द प्रॉब्लम इज व्हाट, बेसिकली इट इज एक्चुअली रिटर्न्स टेबल, और मैंने इसे रिटर्न लिख दिया है. सो आई थिंक नाउ इट इज एब्सोल्युटली फाइन. सो लेट्स सेव एंड रन दिस कोड नाउ.
This is my main menu. So now select these three. Now select this option number 2. The member ID is 1. The book ID is 2. Return date is say 2020-11-24. Then number of copies my 1. So now it is book returned. So now go back to the main menu. So what I do, I select this option number 3. Now here I select this book details. So now search for the book 4 number and ID is book 2. So now here it is saying that remaining copies is my 10. Again go back to option number 5. It should be option number 5 and then select option number 4, and from here you say select option number 4 for return details. So you can see यहाँ पे return आ गया है. You can also check in the MySQL server by selecting select star from book, and now you see यहाँ पे 10 आ रहा है. इसका मतलब now you can understand that कि किस तरह से हम बुक इशू करने के लिए और बुक रिटर्न करने के लिए फंक्शन रेडी करेंगे. सो नाउ मेरा इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट मेन फंक्शनैलिटी भी इम्प्रूव हो चुका है. यहाँ पे लास्ट हमारे पास बचता है अब डेटा विजुअलाइजेशन, एंड इसके बाद में ये जो सारे फंक्शंस मैंने एक ही मेन फाइल के अंदर रेडी किए हुए हैं. सो दैट मैं क्या करूँगा अब इसको, सो लाइक यू कैन सी हियर दिस इज वन सिंगल main.py फाइल जिसमें हमने सारा वर्क एक साथ कर दिया है. तो हम क्या करेंगे, बुक के नाम से एक अलग मॉड्यूल रेडी करेंगे जिसमें बुक से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस के फंक्शन होंगे. सिमिलरली मेंबर का सेपरेट मॉड्यूल होगा, ट्रांजैक्शन का सेपरेट मॉड्यूल होगा, रिपोर्ट का सेपरेट मॉड्यूल होगा. तो ये मॉड्यूलराइजेशन का पार्ट हम करेंगे, एज वेल एज ये जो मेन मेन्यू हमने डिजाइन किया हुआ है यू कैन सी हियर, इसे भी हम थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाएंगे ताकि वो देखने में सही और अच्छा लगे. एंड फाइनली जो हमारा जैसे अभी बात की डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो चार्ट हमने रेडी करना है, तो ये तीनों वर्क और फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग का थोड़ा बहुत काम, तो ये सारा काम हम इस प्रोजेक्ट दैट इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो सीरीज के लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट करते हैं और फाइनली उस वीडियो सीरीज में इस सेशन को कंक्लूड करेंगे. So till then, bye bye, take care, keep practicing, keep learning, and thank you very much for watching this video.